हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। दिस इज लीगल न्यूज का सेकंड मॉड्यूल। कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से वी कुडंट डू लाइव क्लास, सो दिस इज अ रिकॉर्डेड मॉड्यूल फॉर यू। ओके, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, वी वर टॉकिंग अबाउट ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का न्यूज आया था दैट देयर वाज अ एयर क्वालिटी कमीशन, ठीक है, विच शट डाउन बिकॉज उसका ऑर्डिनेंस लैप्स हो गया था। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डिनेंस? ठीक है दोस्तों, हमने शुरुआत की क्लास में देखा था दैट देयर इज अ बिल। जो बिल होता है वो पास होकर एक्ट बनता है, बट व्हेन यू कैन से लेजिस्लेशन इज नॉट इन पावर, यू कैन से उस समय पे प्रेसिडेंट साहब को अर्जेंटली कोई लॉ बनाना है, देन दैट लॉ इज प्रोमलगेटेड थ्रू ऑर्डिनेंस रूट. Is there a, you can say, constitutional power for that? Yes. Article number 123 gives that power in the hand of president to promulgate an ordinance. I hope it is very clear. Great. Governor can also pass a bill or pass an ordinance or promulgate an ordinance in the state. We are talking about the parliament. Okay. Same, you can say, idea is applicable in the state. Okay. So when can it be used? President has a certain law making power, ठीक है, when either of both houses of parliament is not in session. Yes or no? So that means parliament cannot make a law and thereby we have to make a law very urgently. Then there is a, you can say, law is applicable there. So what are the subjects on which ordinance will be made? Ordinance can be issued on any subject where parliament has a power to legislate. So that means president cannot make ordinance for a state but for the entire India. Okay, is there a limitation? There is no limitation. ठीक है, okay, the ordinance making power is basically an executive power. ठीक है, as such, in terms of the area, in terms of the jurisdiction, in terms of the you can say subject, there is no limitation. But when can we go for ordinance? When legislature is not in session, ठीक है, or when there is an immediate action is required and the parliament approval during the session that is within 6 weeks it is needed. Okay, so दोस्तों, can this ordinance be retrospective? Yes. Okay, there are 3 conditions when ordinance will become void. Okay, कब void हो सकता है? Ordinance promulgated when parliament is in session. ठीक है, तो भैया वो null and void है, हो ही नहीं सकता ना. there is a parliament functioning, so go there, make a law there. This is how the constitution will say to executive. Okay, or there is an existence of ordinance ceases in the case parliament takes no action within the 6 weeks from its reassembly. ठीक है भैया, रीअसेंबली के ऊपर 6 वीक के अंदर पार्लियामेंट ने अगर कोई डिसीजन नहीं लिया तो वो लैप्स हो जाएगा. Ordinance would consider to be void in the case both houses pass a resolution disapproving it. अगर वो बोले कि भाई हम नहीं करेंगे तो भी ऐसा हो सकता है. Indian president is one of the rarest ones, ठीक है, okay, among the world leader to have such kind of ordinance making power. ठीक है, I hope it is very clear. Great दोस्तों, president's power to roll out ordinance is justiciable. ठीक है, अगर वो कहीं पे मैलाफाइड प्रूव हुआ तो आप उसके ऊपर कोर्ट में जा सकते हो. यस नो, उसको कैंसल कर सकते हो. लेट्स टॉक अबाउट डेथ पेनल्टी. ठीक है दोस्तों, इंडिया में प्रायर टू 1955 सीआरपीसी के मुताबिक अगर हम बात करें, ठीक है, सो देयर वाज डेथ पेनल्टी वाज अ नॉर्म एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाज एन एक्सेप्शन. पर भैया 1955 के बाद हमने अमेंडमेंट किया एंड देन वे सेड कि भैया डेथ पेनल्टी इज अ कैपिटल पनिशमेंट, उसको कम से कम देना चाहिए, इन अ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में देना चाहिए. यस और नो? सो दोस्तों 1955 के अमेंडमेंट के द्वारा द कोर्ट्स वर एट लिबर्टी ऑफ ग्रांटिंग इधर डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट. दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि कौन से आर्टिकल के द्वारा, कौन से सेक्शन के द्वारा ये डेथ पेनल्टी दी जाती है. सेक्शन 354 ऑफ सीआरपीसी 1973 के कोर्ट को पावर देता है कि डेथ पेनल्टी देगा, मैक्सिमम पेनल्टी देगा, बट इट रिक्वायर्स टू स्टेट रीजन. बगैर रीजन नहीं चलेगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये सुनो दोस्तों, कैपिटल पनिशमेंट एक हार्श पनिशमेंट है. ठीक है, ग्लोबल प्रैक्टिस के बारे में अगर हम बात करें, यूनाइटेड नेशन ने सब लोगों को बोल दिया है कि भैया देयर हैज टू बी मोराटोरियम अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी, इसके ऊपर करना ही नहीं है. ठीक है, इंडिया इज ऑफ द व्यू दैट criminals guilty of having committed some intentional cold-blooded
deliberate, brutal murders, if they escape with the later punishment, then the laws are not effective. Yes or no? And thereby it will be resulted in the travesty of the justice. न्याय कैसे मिलेगा? ठीक है, इंडिया का ये मानना है, ठीक है भैया, ये इंडिया का क्या, इंडिया के सभी लोगों का ये मानना है कि ऐसा होना नहीं चाहिए भैया, जल्द से जल्द उसको सजा मिलनी चाहिए, है ना? तो धीरे धीरे हम तालिबान ही बन सकते हैं. वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट सच काइंड ऑफ एक्सट्रीम सिनारियो. यस और नो? सो दोस्तों, लॉ कमीशन रिपोर्ट ने बोला था द डेथ फॉर एन मतलब डेथ ऑफेंस हैज टू बी गिवन इन द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस. तो ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस कौन से? वेजिंग वॉर अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट, ये से आईपीसी धारा 121 के मुताबिक, ठीक है. देन अबेटिंग म्यूटिनी एक्चुअली कमिटेड, ठीक है, म्यूटिनी जो एक्चुअली हो गई उसको अबेट करना, उसको सपोर्ट करना, ठीक है भाई. ये म्यूटिनी आपने कर दी तो वेजिंग वॉर में पहुंच जाएगा. अगर आप अबेट करते हो तो भी वो ऐसा हो जाएगा. और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, जिसकी वजह से कोई इनोसेंट पर्सन को डेथ हो जाएगी या मर्डर किया गया. दोस्तों, ये हो गए आपके अलग अलग ऑफेंसेस जो आईपीसी में बोले हैं. देयर आर अदर स्टैट्यूट जिसके द्वारा डेथ पेनल्टी मिल सकती है. कौन से? पहला, कमीशन ऑफ सती 1987 के मुताबिक. प्रिवेंशन ऑफ सती है भैया, कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी को अबेट करता है फॉर सती. यस, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर अवेयर अबाउट सती प्रथा. और SC ST एट्रोसिटी मतलब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989, अगर कोई फॉल्स एविडेंस देता है लीडिंग टू द एग्जीक्यूशन ऑफ एन इनोसेंट मेंबर बिलोंगिंग टू SC and ST, दैट वुड अट्रैक्ट डेथ पेनल्टी. यस नो? या पॉक्सो, याद है भैया पॉक्सो, ठीक है. वहां पे वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या बोला, सॉरी महाराष्ट्र के अगेंस्ट से जो हाईकोर्ट ने क्या जजमेंट दे दिया था, बड़ी परेशानी की सिनारियो हो रही थी. यस नो? सो दैट्स एन एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है, कोई छोटे बच्चे के ऊपर अगर किया, दिस इज चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस के बारे में बात हो रही है. या नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985, ठीक है, या तो कोई फाइनेंस करता है या प्रोड्यूस करता है, मैन्युफैक्चर करता है ऐसे तरीके के ड्रग, ठीक है, जिसके बारे में सरकार ने ना बोल के रखा है, तो दैट में अट्रैक्ट डेथ पेनल्टी फॉर अ रिपीट ऑफेंडर्स. और UAPA, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक्ट्स ऑल्सो प्रोवाइड डेथ पेनल्टी फॉर सर्टेन स्पेसिफाइड ऑफेंसेस. सो वो भैया मार्शल कोर्ट के अंदर इसका काम होगा. सो दिस आर दी एडिशनल, समझिए दोस्तों, ये कुछ अदर स्टैट्यूट है जिसके अंदर भी डेथ पेनल्टी मिल सकती है. ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं मनी बिल के बारे में, फाइनेंस बिल के बारे में, ठीक है, एप्रोप्रिएशन बिल के बारे में. दोस्तों, भारत देश में, ठीक है, हमने लोकसभा के हाथ में बड़ा पावर दिया है. ठीक है, एक एग्जीक्यूटिव होगा विच इज फाइनेंस मिनिस्टर. ठीक है, वो लोकसभा में एक बिल रखेगा, एक प्रस्ताव रखेगा कि भैया हमें साल भर में इतना इतना खर्चा करना है. ठीक है, विच विल बी नोन एज बजट. ओके, उसको क्या बोला जाएगा? बजट. बजट पास हुआ, उसके साथ साथ एक कागज और पास होना चाहिए विच इज नोन एज मनी एप्रोप्रिएशन बिल. दोस्तों, भारत में एक पोजीशन है जिसका नाम है CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. भारत में इनको जो काम दिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ ऑडिटिंग का है, कंट्रोलिंग का नहीं है. पैसा इनके हाथ से आता नहीं है. पैसा भारत में अगर निकालना है अकाउंट में से, कौन से अकाउंट में से? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. तो भैया वो लेजिस्लेचर के अप्रूवल बगैर हो नहीं सकता, विच मीन्स पार्लियामेंट के अप्रूवल के बगैर हो नहीं सकता. पार्लियामेंट का अप्रूवल के लिए वी नीड अ बिल विच इज कॉल्ड मनी अप्रोप्रिएशन बिल. CAG का आइडिया हमने ब्रिटेन से लिया था. तो ब्रिटेन वाले बोलते हैं कि भैया हमारे यहाँ तो एक बार पार्लियामेंट ने बजट पास कर दिया, पैसा निकालने वाला आदमी कौन है? CAG. समझ में आ रहा है आपको? ग्रेट. भारत में ऐसा नहीं है. हमने ये पावर किसके हाथ में दिया है? पार्लियामेंट के अंदर. सो द एप्रोप्रिएशन बिल गिव्स अप्रूवल to withdraw money from consolidated fund of India. Yes or no? This is how the idea is. Is that very clear to everyone? दोस्तों, इसके अलावा, है ना, इसके अलावा मनी अप्रोप्रिएशन बिल के अलावा एक और सिस्टम होती है which is known as गुलोटन, है ना. This is known as गुलोटिन. गुलोटिन is a legislative mechanism which approves the fast tracking of some outstanding demand for the grant without any discussion. ठीक है, कोई डिस्कशन नहीं चाहिए.
बुलेटिन के द्वारा अगर पैसा मांगा गया तो तुरंत उसको पास कर देना है, दैट इज हाउ द आइडिया इज। दोस्तों ये मनी अप्रोप्रिएशन बिल भी अगर बजट पास हो गया तो ऑटोमेटिकली उसको पास कर देना है। ये सुनो, मनी बिल पास नहीं हुआ तो भैया प्रॉब्लम है। चलिए देखते हैं मनी बिल क्या होता है। दोस्तों एक तरीके का फाइनेंस बिल है, ठीक है, फाइनेंस बिल है। फाइनेंस बिल हैज you can say a government's proposal for taxation. Finance bill is you can say government का proposal for taxation. It is also classified as money bill. Yes or no? Money bill है, money bill को राज्यसभा का कोई explicit consent नहीं चाहिए, ठीक है। मनी बिल if it is passed in लोकसभा it is treated that it is passed in the राज्यसभा। ये सुनो, अपर हाउस उसको सिर्फ डिस्कस कर सकती है। दोस्तों अपर हाउस 1921 में बना था, आपको याद होगा तो। ये सुनो, इंडिया में राज्यसभा की शुरुआत 1921 में हुई थी ना, काउंसिल ऑफ स्टेट और जो विधानसभा जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी भी शुरुआत 1921 में हुई। उसके आज 100 साल कंप्लीट हुए भैया। ये सुनो, ये आपको पता होगा। चलिए ग्रेट, ठीक है, आई थिंक दिस इज प्रीटी क्लियर। अगला वर्ड है एमिकस क्यूरी। क्या वर्ड है? एमिकस क्यूरी। एमिकस क्यूरी इज अ फ्रेंड ऑफ अ कोर्ट, ठीक है, इज नॉट अ पार्टी टू अ कोर्ट, ही इज अ फ्रेंड ऑफ अ कोर्ट, ही इज एन इंडिपेंडेंट पर्सन, ही इधर गिव्स इंफॉर्मेशन और इज एन एक्सपर्ट और ही गिव्स इनसाइट, इज टर्म्ड एज फ्रेंड ऑफ अ कोर्ट, ठीक है। भैया ये समझना बहुत जरूरी है, ये आइडिया कहाँ से आया। दोस्तों ये आइडिया आया रोमन लॉ से, 9th सेंचुरी में। इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन इंग्लिश लॉ, ठीक है। उसके बाद सभी कॉमन लॉ सिस्टम में ये आगे बढ़ने लगा, ठीक है। भैया ये जो एमिकस क्यूरी है वो रखना है या नहीं रखना है वो डिस्क्रिप्शन कोर्ट का है। कोर्ट उसको रखे या ना रखे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सुनो, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फाइनेंस बिल, ठीक है, ऑलरेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सिग्नेचर करके आता है, विच इज अबाउट टैक्सेस, which is about government expenditure, which is about government borrowing, revenues, ये सब चीजें उसके अंदर आती है, ठीक है। और वो अलग अलग उसके प्रावधान है। दोस्तों फाइनेंस बिल एक ब्रॉडर कैटेगरी है, मनी बिल उसका पार्ट है, ठीक है। मनी बिल, फाइनेंस बिल आर्टिकल नंबर 117 में बोला जाता है। ये सुनो, ठीक है। सो दोस्तों मनी बिल और फाइनेंस बिल में अंतर क्या होता है? ऑल मनी बिल आर फाइनेंस बिल बट ऑल फाइनेंस बिल्स आर नॉट मनी बिल। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था। ये सुनो दोस्तों, फाइनेंस बिल यू कैन से तब मनी बिल होंगे जब वो एक्सक्लूसिवली आर्टिकल नंबर 110 में बताए गए होंगे। ये सुनो, तभी उसको मनी बिल मतलब फाइनेंस बिल को मनी बिल बोलेंगे। ये सुनो दोस्तों, मनी बिल आर्टिकल नंबर 110 में आता है, जिसके तहत अगर वो बिल पास नहीं हुआ तो इट विल बी ट्रीटेड एज दी प्राइम मिनिस्टर का रेजिग्नेशन। उनको रिजाइन करना पड़ेगा पूरी कैबिनेट मिनिस्ट्री के साथ, फिर नए प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। इलेक्शन नया हो जरूरी नहीं है। ये सुनो, ठीक है दोस्तों, फाइनेंस बिल के अंदर मनी बिल के अलावा कुछ और चीजें होती है, कुछ मैटर ऑफ जनरल लेजिस्लेशन। दोस्तों आपको याद होगा, यू कैन से आधार का बिल वॉज पास्ड एज अ मनी बिल। उसके ऊपर बड़ा हल्ला हुआ था कि भैया आधार को मनी बिल की तरीके से क्यों पास किया गया। तो गवर्नमेंट ने बोला कि आधार को मनी बिल के लिए इसलिए पास किया गया क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ सब्सिडीज विच गवर्नमेंट इज गोइंग टू प्रोवाइड, दैट इज गोइंग टू बी पास थ्रू आधार ओनली। आधार के द्वारा ही हम देंगे, तो भैया वो तो पैसों की बात हो रही है तो वो मनी बिल होना चाहिए। ऐसा करके उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। ये सुनो, सो दोस्तों इस तरीके से आपको मनी बिल और फाइनेंस बिल के बारे में पता होना चाहिए। 6th शेड्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है दोस्तों। पंचायत सिस्टम के अंदर देयर इज अ 6th शेड्यूल विच इज कमिंग, विच इज प्रोटेक्टिंग ट्राइबल पॉपुलेशन एंड प्रोवाइडिंग autonomy to the communities there by creating some autonomous development council। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। 125th you can say amendment bill इस बात को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टेट्स में फायदा होता, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में ऐसे डेवलपमेंट काउंसिल की जरूरत पड़ती है। ये सुनो, ठीक है दोस्तों, ये ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल क्या होते हैं? ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल्स आर दी बॉडीज विच आर दी रिप्रेजेंटिंग अ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है दोस्तों। आज की तारीख में आसाम, मेघालय,
त्रिपुरा, मिजोरम में ऐसे 10 ऑटोनोमस काउंसिल है, ये सुनो, ठीक है, उनकी जो बाउंड्री है, ठीक है, वो उस स्टेट के गवर्नर डिफाइन करते हैं, ये सुनो, सो दैट इज कॉल्ड ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल, एडीसी बोलते हैं. देन देर आर रीजनल काउंसिल्स, ठीक है, 6 शेड्यूल में लिखे भैया रीजनल काउंसिल होंगे, ठीक है दोस्तों. ये सबकी इसलिए जरूरत है क्योंकि, है ना, भारत में एक ऐसे पिछले कुछ समय में ऐसे ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में काफ़ी प्रॉब्लम्स आए थे, ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि हर एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल विल हैव नॉट मोर देन 30 मेंबर्स, ठीक है. 4 मेंबर गवर्नर नॉमिनेट करेंगे और उनका टेन्योर 5 होगा. और आपको याद होगा बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के बारे में अभी हमने लाइव क्लास में बात करी थी, तो वहां पे हमने बोला था दैट्स एन एक्सेप्शन, क्योंकि वहां पे 46 मेंबर्स होंगे, ठीक है. और फिर आया ये आपका 125th अमेंडमेंट बिल, ठीक है. हालांकि ये पास हुआ नहीं है, उसके अंदर ये बोला गया था दैट विलेजेस के म्यूनिसिपल काउंसिल है, ठीक है, उसका फाइनेंशियल एंड एग्जीक्यूटिव पावर बढ़ा दिया गया विद द ऑटोनोमस काउंसिल. तो ये उन्होंने करने की कोशिश करी थी. तो दोस्तों लीगली आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो भी एरिया है, ऑटोनोमस रीजन है, उन ऑटोनोमस रीजन का अपना अपना एक पावर है और वो कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव होता है, और उसको अगर निकालना है तो अमेंडमेंट करने पड़ेंगे, ये सुनो. फिर आता है एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट हुआ, ठीक है. जस्टिस एन.वी. रमन्ना आंध्र प्रदेश से है. ही रिप्लेस्ड, यू कैन से, CJI शरद अरविंद बोबड़े जो महाराष्ट्र से थे, ठीक है. नाउ CJI हैज बिकम 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. भैया आर्टिकल नंबर 124 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट, है ना, हैज अ पावर, ठीक है, दैट दे विल मेक एन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ठीक है. देयर इज नो स्पेसिफिक प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अपॉइंटिंग चीफ जस्टिस, यस और नो. सो हु विल बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भैया कोई प्रोविजन नहीं है तो कैसे होगा? तो भैया कन्वेंशन है, CJI should be the senior most judge of the Supreme Court. If there is a doubt about the fitness of senior most judge to hold the office of the CJI, ठीक है, there will be consultation will be made with other judges of Supreme Court and they will take a decision. कौन उसको अपॉइंट करेगा? Law Minister has to seek a recommendation of outgoing CJI for the appointment of the new CJI. Law Minister then puts this recommendation to Prime Minister who will advise President to appoint. भाई CJI का टेन्योर कितना होता है? कोई फिक्स नंबर नहीं है. जिस दिन से वो अपॉइंट हुए तब से लेकर उनकी रिटायरमेंट एज तक. What is the retirement age of Supreme Court judges? 65 years. What is the retirement ages of High Court judges? 62 years. इसीलिए तो नया एक बहुत पुराना प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट ने निकाला, जिसके द्वारा एडहॉक जजेस हाई कोर्ट के अपॉइंट करने के बारे में बात हुई, क्योंकि इतने सारे केसेस पड़े हुए थे. अभी इनको निकालने का एक और तरीका है, विच इज थ्रू अ प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट. ओके, इम्पीचमेंट के प्रोसेस के द्वारा उनको निकाल सकते हैं, ठीक है. चलिए ग्रेट दोस्तों, एक और जो एक्ट था जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहा था, विच इज़ नोन एज प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट. दोस्तों आपको याद होगा भारत में अनटचेबिलिटी की परंपरा काफ़ी समय से चली आ रही थी. अनटचेबिलिटी की परंपरा को निकालने के लिए एक आइडिया दिया गया था आर्टिकल नंबर 17 के अंदर, विच इज़ अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विच सेज एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. हाउएवर वहां से बोलने से कुछ नहीं होता है, ठीक है. उसके लिए लॉ बनाया गया विच वॉज नोन एज अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955. अब इस एक्ट के अंदर कुछ लेक्यूना हुए कि अनटचेबिलिटी तो लोगों ने अलग अलग तरीके से मतलब इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी, है ना. किसी के बारे में बुरा बोल देना, किसी को उसके धर्म के उसके जात के बारे में बुरा बोल देना, ऐसा लोगों ने बोलना चालू करा. तो उन्होंने नया लॉ लेकर आए विच इज नोन एज प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1976, कि भैया लोगों के सिविल राइट्स है वो प्रोटेक्ट करने चाहिए, ये सुनो. पर भैया देश में अनटचेबिलिटी इतना ज़्यादा घुसा हुआ था कि वहाँ पे ये जो PCRA वो सही तरीके से काम नहीं कर पाया. तो PCRA के अंदर जो कमी थी प्लस IPC की जो कमी थी, उन सबको हटाने के लिए एक नया लॉ लेकर आना पड़ा, विच इज़ नोन एज शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, ठीक है. और 1995 में उसके नए रूल लेकर आए, विच इज नाउ नोन एज
शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट और SC/ST एक्ट और सिंपली एट्रोसिटी एक्ट, इस तरीके से अलग अलग नाम दिए जाते हैं। उसके बहुत शानदार से और शानदार प्रोविजन है, ठीक है, जहां पे, ठीक है, देयर आर न्यू टाइप ऑफ ऑफेंसेस, ठीक है, विच आर रिलेटेड, जो PCRA और IPC में नहीं थे, ठीक है भैया। एट्रोसिटीज कैन बी कमिटेड ओनली बाय non-SCs एंड non-STs ऑन द मेंबर ऑफ SCs एंड ST कम्युनिटीज। दोस्तों क्योंकि जो कुछ पुराने लॉ थे, ठीक है, उसमें ऐसे बहुत सारे लेक्यूना थे, लोग इस सब का फायदा उठाकर बच जाते थे और इसकी वजह से इन्होंने इस तरीके से लॉ लगाए, ठीक है। काफ़ी से ज़्यादा प्रोविजन होते हैं जहाँ पे जो पब्लिक सर्वेंट है जिसने इस चीज़ों का ध्यान नहीं दिया कि भैया उसने अपनी ड्यूटी निगलेक्ट करी, उसके पास अगर SC/ST वाले लोग आए और उन्होंने बोला कि ये लोग हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं और उसके बावजूद उसने एक्शन नहीं लिया तो प्रॉब्लम है, तो उनको पनिशमेंट मिल सकती है जो भारी पनिशमेंट होगी। ये सुनो, ठीक है, ये बिल्कुल है भैया। इसके अंदर बेल नहीं मिलती है, इट इज नॉन बेलेबल, ठीक है, और एंटीसिपेटरी बेल को भी डिनाई किया जाता है। तो ये सब प्रावधान थे जिस वजह से लोग गए थे, है ना भैया, सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के पास जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट ने इस सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर थे उसको खारिज करते हुए उन्होंने बोला नहीं नहीं भैया ये तो रहेगा ही रहेगा। ये सुनो, दिस इज हाउ दिस सिनेरियो गेटिंग डेवलप्ड। अब हम चलते हैं जुडिशियल रिव्यू के बारे में। व्हाट इज अ जुडिशियल रिव्यू? जुडिशियल रिव्यू is a proceeding by the court wherein judge reviews the lawfulness of a decision or action made by any public body. Yes or no? Which means अगर लॉ बनाया है, that is legislature ने लॉ बनाया है, तो उसको रिव्यू करेंगे कि whether law is just, fair and reasonable है कि नहीं। Yes or no? इसके ऊपर ध्यान देंगे। Yes or no? या कोई एग्जीक्यूटिव ने कोई एक्शन लिया है, वो एक्शन उनका जस्ट, फेयर और रिजनेबल है कि नहीं। दोस्तों भारत में इस मुद्दे के ऊपर बहुत कंफ्यूजन हुआ था, ठीक है भाई। हमारे यहाँ पे आर्टिकल नंबर 21 में बोला है कि भैया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के द्वारा, ठीक है, या प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के द्वारा, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 21 में बोला है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, इट मीन्स दैट अ लॉ कैन बी इनेक्टेड बाय अ लेजिस्लेचर और कंसर्न बॉडी इज वैलिड ओनली इफ देयर इज अ करेक्ट प्रोसीजर हैज बीन फॉलोड, ठीक है। अगर प्रोसीजर सही तरीके से फॉलो कर दिया ना, ठीक है, तो भी उसको हम सही मान लेंगे। दैट वाज आर्टिकल नंबर 21 के द्वारा ये लिखा गया था, ठीक है। पर अमेरिका का आइडिया था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इस डॉक्ट्राइन के द्वारा ये बोला जाता है दैट नॉट ओनली चेक्स इफ देयर इज अ लॉ इज टू डिप्राइविंग लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, वेदर इट इज, वी कैन से प्रोसीजर के द्वारा सही है कि नहीं, but it is also to be checked whether it is fair, just और रिजनेबल। मतलब जिस लॉ के द्वारा आप किसी की लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव करते हो वो लॉ फेयर, जस्ट और रिजनेबल है कि नहीं, वो भी आपको देखना है। ये सुनो दोस्तों, जुडिशियल रिव्यू हैज अ टू इंपॉर्टेंट फंक्शन। वन, इट इधर लेजिटिमाइजेस द गवर्नमेंट एक्शन, और दूसरा इट इज प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अगेंस्ट द अनड्यू एनक्रोचमेंट बाय द गवर्नमेंट। मतलब दो धारी तलवार है, एक तरफ गवर्नमेंट के एक्शन को जस्टिफाई भी करती है और दूसरी तरफ गवर्नमेंट के एक्शन को निकाल भी देती है। जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, और वो इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था दैट जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। यस और नो, ठीक है, इज दिस कंफर्टेबल टू एवरीवन? दोस्तों इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरप्रिटेशनल एंड ऑब्जर्वर रोल ऑफ इंडियन जुडिशरी। इंडियन जुडिशरी का इंटरप्रिटेशनल रोल है या ऑब्जर्वेशनल रोल है, ठीक है। कैन दे रिव्यू लेजिस्लेटिव एक्शन? बिल्कुल दे कैन डू सो। ये सुनो, ये तो हमने बात करी। कैन दे रिव्यू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन? यस दे कैन डू दैट। व्हाट अबाउट रिव्यू ऑफ जुडिशियल डिसीजन? Can they do so? Yes, they can do so. They can correct or make any changes in a previous decision by judiciary itself. Yes or no? ठीक है। इसीलिए कोई भाई साहब आए थे जिन्होंने एक ऐसे सुप्रीम कोर्ट में एक मुहिम लगाई थी कि भैया 1975 में जो इमरजेंसी लगाई गई थी उसको आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दीजिए, ऐसा बोला था, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने वो बात सुनी और उसको बाद में निकाल दिया। फालतू की बातें कर रहे थे तो उनको वहां से हटा दिया। इज दैट कंफर्टेबल फॉर एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते दोस्तों।
देन वी हैव इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल. दोस्तों इंश्योरेंस में यू कैन से द एक्ट अलाउज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, टू हैव अप टू 49%. सो आपको याद होगा मैंने आपको एफडीआई के बारे में बताया था. यस और नो, इन अ प्रीवियस क्लास ऑफ यू कैन से करंट अफेयर आई डिस्कस्ड अबाउट कि भैया एफडीआई कितना है इंश्योरेंस में, 49%. ठीक है, अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है, द लिमिट ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडियन इंश्योरेंस कंपनी इज इंक्रीज्ड from 49 to 74% and they are removing all the kind of restrictions on it. ठीक है, so I think this is pretty clear to you. बराबर है दोस्तों. इंश्योरेंस है ना, अब गवर्नमेंट उसमें से निकलना चाहती है और LIC का एक बड़ा IPO आएगा. अभी इंडिया का शायद सबसे बड़ा IPO आने वाला है पेटीएम का. ओके, उसके बाद आएगा ये LIC का, पर अभी तक का सबसे बड़ा जो लेकिन से IPO था वो था GIC का, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब GIC दैट इज जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन री इंश्योरेंस कंपनी, मतलब इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस देने वाली कंपनी. ओके, आई होप इट इज वेरी क्लियर. ग्रेट. हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2021. ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा था. ठीक है, जहां पे हरियाणा ने ये लॉ पास किया था दैट देयर विल बी 75% रिजर्वेशन इन अ प्राइवेट सेक्टर फॉर द जॉब सीकर्स फ्रॉम हरियाणा. ये सनो भैया, ये किसको अप्लाई होगा? कंपनीज, सोसाइटीज, ट्रस्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म और एनी कंपनी विच इज एम्प्लॉइंग 10 और मोर पर्सन्स. ये सनो, इसके पहले आंध्र प्रदेश became the first state to provide such kind of reservation. सवाल ये पैदा होता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली सही है कि नहीं. कॉन्स्टिट्यूशनली ये देखना है कि नहीं देखना है, वो आर्टिकल नंबर 16 में देखना पड़ेगा. आर्टिकल नंबर 16 बोलता है कि states will not, you can say, discriminate people on the ground only of religion, race, caste, sex, descent, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस और एनी ऑफ देम. ठीक है, सो एक तरीके से देखा जाए तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड होने की संभावना है. नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, उसके बारे में बात हो रही थी. ये सुनो, ठीक है, क्या बातें हो रही थी? दैट एक्ट, ठीक है, मतलब दे वर इंटरेस्टेड टू अमेंड नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2011 एक्ट वॉज वैलिड टिल 31st December लास्ट ईयर, दैट इज 2019. तब तक ये वैलिड था. ये सुनो, अब बिल ये एक्सपेक्ट करता है कि इस डेडलाइन को हम एक्सटेंड करें, ठीक है, टिल द एंड ऑफ December 2023. सॉरी, द प्रोविजन ऑफ 2011 एक्ट, ठीक है, क्या बोलता था? रेगुलराइजेशन एंड अनऑथोराइज जो कॉलोनी नेशनल कैपिटल रीजन में बनाई गई थी, ठीक है, उसको हम कोई ना कोई तरीके से रेगुलेट करें. ये सुनो, उसके बारे में बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि इसको और एक्सटेंड कर दीजिए. ठीक है दोस्तों, अमेंडमेंट क्या लेकर आया? अमेंडमेंट बोलता है कि भैया ये जो अनऑथोराइज कॉलोनी है विल बी आइडेंटिफाइड, ठीक है, थ्रू नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ रेसिडेंट्स इन अनऑथोराइज कॉलोनी एक्ट, और उसके द्वारा unauthorized colonies which existed as on 1st June 2014 and having 50% development as on 1st January 2015 will be eligible for regularization. ये ध्यान रखना, ये बहुत काम की चीज है. अगर ये आपको बात समझ नहीं आई, इसको पॉज करिए, 2 बार पढ़िए, समझ में आ जाएगा. ओके, इज दैट कंफर्टेबल फॉर एवरीवन? जो लोग अनऑथोराइज वे में दिल्ली में रहते थे, ठीक है, उनको प्रॉपर्टी राइट के द्वारा ऑथोराइज करने के बारे में बात हो रही है. ये सुनो, सो जो भी अनऑथोराइज कॉलोनी थी जो 1 जून 2014 के पहले थी एंड दे हैड 50% डेवलपमेंट एज ऑन 1 जनवरी 2015, तो वो एलिजिबल हो जाएगी. ओके, ग्रेट. प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था. What is the objective of the act? To freeze the status of any place of worship which existed on 15th August 1947, to provide maintenance of religious character. उस तरीके की चीजों के बारे में, जो भी रिलीजियस प्लेसेस होंगे उनका मेंटेनेंस करने का अधिकार. फ्रीज द स्टेटस एंड टू प्रीएम्प्ट द न्यू क्लेम्स बाय एनी ग्रुप. नया ग्रुप कोई नया क्लेम नहीं लेके आ सकता.
ओके, ये कंडीशन थी। एक्सेप्शंस क्या थे? दिस प्रोविजन विल नॉट अप्लाई टू मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स कवर्ड बाय एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स रिमेन्स ऑफ 1958। वो इसमें कवर नहीं होगा, ठीक है, ओके, ये इसमें कवर नहीं होगा, बराबर है। अ सूट दैट इज बीन फाइनली सेटल्ड और डिस्पोज्ड ऑफ, ठीक है, जो चीज ऑलरेडी सेटल हो चुकी है या डिस्पोज ऑफ करी गई है उसके ऊपर भी नहीं होगा, या एनी डिस्प्यूट that has been settled by parties or conversion of any place that took place by acquisitions before this act commenced। ये एक्ट कमेंस हुआ उसके पहले पार्टियों ने अंदर अंदर एग्रीमेंट कर दिया तो नहीं होगा। एंड देयर इज अ सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट सेज दैट दिस एक्ट डज नॉट अप्लाई टू द प्लेस ऑफ वर्शिप कॉमनली रेफर्ड टू एज राम जन्मभूमि मस्जिद, बाबरी मस्जिद इन अयोध्या, उसके ऊपर ये एक्ट नहीं लगेगा। इसी की वजह से तो राम जन्मभूमि का पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ और वही वो आर्ग्यूमेंट आया ना, मंदिर यही बनेगा वाला जो आर्ग्यूमेंट था वो इसी के ऊपर आया, ठीक है। चलिए ग्रेट दोस्तों, और अगर ऐसा किसी ने किया तो देयर इज अ पिनल प्रोविजन ऑफ 3 ईयर की जेल विथ अ फाइन। समझ में आया दोस्तों? चलिए ग्रेट। ये एक महत्वपूर्ण बिल है दोस्तों, MMDR बिल, विच इज माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन बिल। इस बिल ने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज काम करा, उसने ये डिस्टिंक्शन जो था कैप्टिव एंड नॉन कैप्टिव माइन को इन्होंने हटा दिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैप्टिव माइन? कैप्टिव माइंस वो होती थी कि जहां पे अगर आप वहां से जो चीजें, लेकिन से मिनरल्स जब आप निकालते हो वो सीधा आप अपनी कंपनी में एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हो तो वो हो गई कैप्टिव माइंस। नॉन कैप्टिव माइन मतलब वो मार्केट में उसको सामान बेच सकती है, ये सुनो, ठीक है। दिस इज हाउ द आइडिया वाज। अब वो डिस्टिंक्शन जो था, है ना, वो उन्होंने हटा दिया, विच मीन्स अब कोई भी कंपनी उसको माइनिंग का अधिकार मिला होगा, उसको लाइसेंस मिला होगा, उस लाइसेंस के बेसिस के ऊपर वो किसी को भी सामान बेच सकती है। यस और नो? इज दैट वेरी क्लियर? ग्रेट। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस रिफॉर्म में अपना रूलिंग दिया था। वन ऑफ द वेरी फेमस केस कॉल्ड प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर उन्होंने बोला था कि भैया यू कैन से ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को नए पुलिस रिफॉर्म लेकर आने हैं। ये सुनो, उन्होंने बोला कि अगर आप कोई डीजीपी को लेकर आएंगे, ठीक है, डेप्यूटी जनरल ऑफ पुलिस को लेकर आएंगे, ठीक है, उसके पास कुछ मिनिमम टेन्योर होना चाहिए, ठीक है। अगर वो मिनिमम टेन्योर नहीं होगा, ठीक है, तो भैया उसको वो उस पोस्ट पे लगा नहीं सकते, ठीक है। इसी वजह से सीबीआई के नए डायरेक्टर साहब आए, ठीक है, उनको इसी लॉ के मुताबिक बोला कि भैया उनका टेन्योर जो भी राकेश अस्थाना जी थे या YM मोदी थे, ठीक है, उन लोगों को जो निकालने के बारे में बात करी गई थी, ठीक है, कि भैया इनको हम सीबीआई के डायरेक्टर बनाना चाहेंगे, तो सीजीआई साहब ने ये बोला उनका टेन्योर 6 महीने का बचा रिटायरमेंट का, तो हम उनको रख नहीं सकते हैं, ठीक है। इसी लॉ के द्वारा उन्होंने बोला था, ठीक है। एडॉक जजेस के बारे में हमने बात करी थी। हाई कोर्ट के जजेस का रिटायरमेंट का एज 62 ईयर्स है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अग्री किया टू अपॉइंट रिटायर्ड जजेस ऑन दी एडॉक बेसिस, क्योंकि हाई कोर्ट में बहुत सारे पेंडिंग जजेस है, ठीक है, पेंडिंग केसेस है, सॉरी, कहाँ पेंडिंग जजेस है, क्या ही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। और एडॉक का अपॉइंटमेंट होता है आर्टिकल नंबर 224A के मुताबिक। ओके, आई होप इट इज वेरी क्लियर, ठीक है। समझिए दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए ये प्रोसीजर क्या है। भैया चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ एनी स्टेट विल मेक यू कैन से रिकमेंडेशन, जहां पे प्रेसिडेंट साहब के अप्रूवल के द्वारा ये पास होगा। ओके, सो इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बात हो रही थी। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट हुआ था। प्रेसिडेंट अपॉइंटेड इलेक्शन कमिश्नर मिस्टर सुशील चंद्रा एज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। उनका टेन्योर होता है यू कैन से 6 साल या तो 65 ईयर, विच एवर इज अर्लियर। उनका सेम स्टेटस है एज अ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उनको रिमूवल करना है तो दे कैन रिजाइन और दे कैन बी रिमूव्ड बाय इम्पीचमेंट। किसके द्वारा निकाला जा सकता है उनको? इम्पीचमेंट के द्वारा निकाला जा सकता है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के बारे में बात हो रही है दोस्तों। OCI, मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोल दिया है दैट OCI will not be required to register for a fresh OCI card every time a new passport is issued. I'm sure you know PIO,
पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ऑन OCI। ओके, ये एक तरीके के कार्ड है, एक तरीके की स्कीम है जो लोगों को मदद करने के लिए, जो लोग इंडिया के सिटीजन नहीं है पर इंडिया के ओरिजिन है, उनको हम ये कार्ड देते हैं। ठीक है, ये सब दोस्तों OCI उन लोगों को नहीं देते हैं जिनके पापा मम्मी पाकिस्तान और बांग्लादेश के हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ओके, अगला पॉइंट है दोस्तों, यहां पे मैं एक और चीज महत्वपूर्ण मुद्दा आपको क्लियर करवाना चाहूंगा दोस्तों। सिटीजन होना, ठीक है, सिटीजन होना दैट इज सिटीजनशिप होना, PIO OCI ये अलग दुनिया है और NRI अलग दुनिया है। NRI रेफर्स टू इनकम टैक्स। अगर आप इंडिया के सिटीजन हो और अगर आपने इंडिया में 180 से कम दिन एक साल में रहे हो, है ना, इंडिया में, यू लिव्ड इन लेस देन 180 डेज इन इंडिया, देन यू बिकम NRI। सिंपल सिंपल, क्लियर है? चलिए, वेरी गुड। ठीक है, ऑल सिटीजनशिप 5 तरीके से मिलती है। PIO और OCI इज अ बेसिकली अ कार्ड इश्यूड फॉर द पीपल फॉर इजी मूवमेंट, हर बार उनको वीजा का चक्कर काटना ना पड़े इसकी वजह से। चलिए, प्लेनरी जुरिस्डिक्शन के बारे में बात हो रही है दोस्तों। फॉर्मर लॉ मिनिस्टर्स, ठीक है, टू दे रोट टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दे अर्ज्ड हिम टू टेक अ नोट ऑफ वर्जनिंग COVID-19 situation and issue suitable directions on a suo motu manner in the exercise of their plenary jurisdiction, ठीक है, to ban political rallies, ठीक है, to ban protest assemblies, ठीक है, and religious festivities of this plenary jurisdiction is coming under article number 142. Yes or no? ठीक है, that gives complete power in the end of Supreme Court to do complete justice। ठीक है, ये लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के ऊपर जाकर काम करेगा और इसको जुडिशियल एक्टिविज्म भी बोला जाएगा। दोस्तों, यूनियन कार्बाइड केस में जब विक्टिम्स को रिलीफ प्रोवाइड करना था तब ये आर्टिकल नंबर 142 यूज किया गया था। ठीक है, कोल ब्लॉक एलोकेशन के अंदर जो कुछ गलतियां हुई थी, कोल गेट स्कैम हुआ था, ये सुनो, कोल गेट स्कैम हुआ था। ठीक है, उस स्कैम में जो रॉन्ग डूअर को अपना कोल एलोकेशन मिला था उसको कैंसिल करने के लिए इसका वी कैन से प्रावधान यूज हुआ था। और लीकर बैन हाईवे पे जो होता था ताकि एक्सीडेंट ना हो और उसका बैन करने के लिए जो हुआ था उसके अंदर भी आर्टिकल नंबर 142 का प्रयोग हुआ था। अब दोस्तों ये बताइए, जब राम जन्मभूमि के लिए, ठीक है, बाबरी मस्जिद को वहां से हटाकर और ये बोला गया था कि सरकार को इनको अलग से लैंड देनी है, ठीक है, ऐसा ऑर्डर देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कौन से आर्टिकल का प्रावधान यूज किया था, जल्दी बताइए। ठीक है, कमेंट में लिख दीजिए। आर्टिकल नंबर 311 के बारे में बात हो रही है दोस्तों। आर्टिकल 311(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या ये बात हो रही है कि भैया जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड स्पेशल टास्क फोर्स फॉर आइडेंटिफाइंग एंड स्क्रूटिनाइजिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज who are involved in any cases related to posing threat to the security or anti-national activities of the country। ठीक है, जम्मू कश्मीर ने ऐसा स्पेशल टास्क फोर्स बनाया है। ठीक है, दिस मूव कम्स एज a number of government employees in the past were found expressing their political opinion in a public scenario। ठीक है, तो ये उन्होंने बड़ी परेशानी करी थी। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा कर दिया था। एक महत्वपूर्ण केस आया था बंस सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, वहां पे सस्पेंशन फ्रॉम सर्विस इज नीदर डिसमिसल और रिमूवल नॉट द रिडक्शन ऑफ रैंक, ऐसा माना गया था। ठीक है, तो भैया ये जो 311 है एक और एंतीलिया केस में भी आने वाला है। 2 मिनट बैठिएगा, मैं उसको समझाऊंगा। ठीक है, श्यामलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में बोला गया था कंपल्सरी रिटायरमेंट डिफर, you can say involves no penal consequences, and also government servant who is compulsorily retired does not lose any part of this। So दोस्तों, आपको याद होगा अभी रिसेंटली सचिन वास को निकाल दिया गया था। ठीक है, तो अ सिविल सर्वेंट कैन नॉट बी डिसमिस्ड or removed by any authority subordinate to the authority by which he was appointed। ये रूल है।
ठीक है, और सिविल सर्वेंट कैन नॉट बी रिमूव और डिसमिस्ड और रिड्यूस टू रैंक अनलेस he has given reasonable opportunity to show cause, you can say any such kind of action. सचिन वास के लिए ये सब हुआ नहीं था, ठीक है, हालांकि उसको निकालने का जो आर्टिकल 311 का प्रावधान था वो भी एक महत्वपूर्ण था. सिमिलरली there is article number 217, ठीक है, आर्टिकल नंबर 217 is about appointment and condition of the office of judge of high court, ठीक है, उसके बारे में है. जज, you can say every judge of high court shall be appointed by president by warrant under his hand and seal after consultation with CJI and governor of the state. अब ये मुद्दा क्यों हुआ था, ठीक है भैया, आर्टिकल 217 के मुताबिक, ठीक है, प्रेसिडेंट हैज अपॉइंटेड श्रीमती जस्टिस विमला एस कपूर टू बी अ जज ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, ठीक है, और ये मुद्दा यहाँ पे आया था. ओके, तो आर्टिकल नंबर यू कैन से 124 के बारे में मैंने आपको बताया था, 62 ईयर्स के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है, एडिशनल और एक्टिंग जज, अभी थोड़ी देर पहले हमने आर्टिकल नंबर 224 के बारे में बात करी थी, ये सुनो, तो ये सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बातें हमने करी थी. चलिए ग्रेट, ठीक है, अब चलते हैं GNCTD अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, ठीक है, ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया, ठीक है. ये एक्ट ने लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली के हाथ में बड़ा पावर दे दिया. इट गिव्स मोर टीथ टू द ऑफिस ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली. यस और नो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ अमेंडमेंट इज टू मेक, यू कैन से, कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है उसको मोर रेलेवेंट बना दिया, ताकि लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने हाथों में सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, इलेक्टेड गवर्नमेंट के हाथ में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कम हो जाए. So what is a government? The government of NCT Delhi is equal to LG of Delhi. खत्म. मतलब वो जो legislative assembly है उसके पास कोई पावर नहीं है. It gives discretionary power to LG in the matters where legislative assembly of Delhi is empowered to make laws. तो LG जो बोले वो फाइनल है, वही वो लॉ है. दोस्तों, दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जम्मू कश्मीर, ये 3 यूनियन टेरिटरी है जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है ना. लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर एक ये लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं. लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो भी काम करना है वो अंडर दी एड एंड एडवाइस पे काम करना है, एक्सेप्ट कुछ चीजों के बारे में. पर दिल्ली में अब ये सिनारियो बदल दिया, पूरा का पूरा सिस्टम अब इन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में दे दिया. ये सुनो, सो दोस्तों, दिल्ली इज गवर्न्ड थ्रू a kind of, you can say, union territory with legislature, ठीक है. 1991 में it came into being through article 239AA. It inserted by Constitution Amendment Act, which is 69th Amendment Act के द्वारा बनाया गया था. लेजिस्लेटिव असेंबली के पास पूरा पावर होगा, एक्सेप्ट इन द पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, ये 3 चीजों के ऊपर इनके पास पावर नहीं होगा. ओके, चलिए ग्रेट. एक महत्वपूर्ण पॉलिसी बनाई गई, नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीजेस. इसको मुझे लगता है कि काम की है, ठीक है. एडवोकेसी ग्रुप्स हैव एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट लैक ऑफ फंडिंग सपोर्ट फॉर दिस काइंड ऑफ पॉलिसीज. उन्होंने कहा कि आपने सब कुछ कर दिया पर पैसों का सपोर्ट किधर है, बताइए, ठीक है. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के तहत जो भी लोग बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज के हैं, ठीक है, या दोज हु आर एलिजिबल एज पर 23 नॉर्म्स ऑफ, यू कैन से, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उनको इसमें इंक्लूड किया जाएगा. दे विल गेट बेनिफिट इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ठीक है. ओके, तो क्या क्या रेयर डिजीजेस को इन्होंने कैटेगराइज किया है. डिसऑर्डर एमिनेबल टू वन टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, ठीक है, या दोज नीडिंग लॉन्ग टर्म लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट, और डिजीजेस फॉर विच डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इज अवेलेबल बट चैलेंजेस आर टू मेक ऑप्टिमल बेनिफिट टू द पीपल, ठीक है. तो ये उन्होंने कैटेगरी डिफाइन करी है. रेयर डिजीज ऐसा होता है विच इज ऑल्सो नोन एज ऑर्फन डिजीज, ठीक है, जहाँ पे दैट डिजीज अफेक्ट्स ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है. ओके, मोस्ट रेयर डिजीजेस आर जेनेटिक. ओके, कैसे? गॉशर्स डिजीज, म्यूकोपोलीसैकेराइडोसिस, पोम्पे डिजीज, फेब्री डिजीज, मैपल सिरप यूरिन डिजीज, ऑर्गेनिक, यू कैन से, एक्सीडेमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा,
ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट इज ट्राइब्यूनल रिफॉर्म ऑर्डिनेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट ने प्रोमलगेट करके इसको निकाल दिया। जितने भी ट्राइब्यूनल थे, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण ट्राइब्यूनल थे, उसको उन्होंने निकाल दिया। ट्राइब्यूनल क्या होता है दोस्तों? इट्स अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, इट इज नॉट अ फुल जुडिशियल बॉडी, ठीक है, ओके। ये एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए लगाई जाती है, टैक्स रिलेटेड मैटर को रिजॉल्व करने के लिए लगाई जाती है। दोस्तों ये जो ट्राइब्यूनल थे वो पहले कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में नहीं थे, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट के द्वारा इसको लेकर आए थे। ओके, सो दोस्तों इसके ऊपर मैंने अलग से आपको वीकेंड से वीडियो बना के रखा हुआ है, प्लीज उसको देखिएगा। एंड ये महत्वपूर्ण बॉडी है, पॉलिसी है, विच इज ड्राफ्ट नेशनल माइग्रेंट लेबर पॉलिसी, ठीक है, नीति आयोग ने ये बना के रखी है। 2011 सेंसस के मुताबिक इंडिया हैड 45.6 करोड़। दोस्तों इसके ऊपर जो भी आर्टिकल आपको न्यूज़पेपर में मिल जाए प्लीज पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बनने की संभावना भरपूर ज्यादा है। 45.6 करोड़ माइग्रेंट है, ठीक है, विच इज 38% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, ठीक है, जो 2001 के सेंसस से कहीं ज्यादा है। ड्राफ्ट पॉलिसी में क्या बातें करी गई थी? माइग्रेशन को फैसिलिटेट करना, ठीक है, ये उन्होंने बातें करी थी, ठीक है, उनके वेजेस को बढ़ाना, एक सेंट्रल डेटाबेस बनाना और उनकी ग्रीवांसीज है उसको हैंडल करने के बारे में बात की गई थी। सो दोस्तों वी आर टॉकिंग अबाउट रजिस्टर ऑफ इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स ऑफ नागालैंड, ठीक है, RIIN। नागालैंड गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि RIIN एक्सरसाइज चालू करे। जुलाई 2019 में इसको उन्होंने लॉन्च किया था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है उनका कि जो आउटसाइडर है, ठीक है, जितने भी नागालैंड के आउटसाइडर है, दे कैन नॉट गेट इंडिजिनस का सर्टिफिकेट सो दैट दे कैन गेट अ जॉब। जो भी इंडिजिनस लोग होंगे उनको तो नौकरी वोकरी मिलेगी ना, है ना भैया, उनको एक से सपोर्ट मिलेगा, फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, ठीक है। तो बहुत सारे लोग बाहर से आकर बोलते थे कि हम भी नागालैंड के लोग हैं। दोस्तों इन्होंने कट ऑफ डेट लगाया था विच इज December 1, 1963। उस समय पे नागालैंड बिकेम द स्टेट ऑफ द कंट्री, है ना, भारत देश का नागालैंड स्टेट बन चुका था, ठीक है। उन्होंने इस RIIN के अंदर ये कट ऑफ डेट डाली है, ये तारीख, ठीक है, सेइंग दैट हु आर द परमानेंट रेसिडेंट ऑफ स्टेट, में जो लोग इस तारीख से पहले यहाँ पे हो, ठीक है, दैट इज व्हाट दी यू कैन से इंडिजिनस पीपल ऑफ दिस कंट्री, दिस पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है। thereby they are going to exclude all those Nagas who have come from outside the boundary of Nagaland। तो ये एक तरीके से प्रॉब्लम हो गया। नागालैंड उसको लीगल इमिग्रेंट की तरीके से मानता है और उनकी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट करने की संभावना पैदा कर सकता है। तो ये एक तरीके से कंट्रोवर्शियल इश्यू बन रहा है, बट यू शुड बी नोइंग अबाउट इट। एंड व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में फटाक से एक ओवरव्यू देता हूँ दोस्तों, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी बनाई है, ये सुनो, उस पॉलिसी के मुताबिक जो भी कॉमर्शियल व्हीकल होंगे 15 साल पुराने होंगे, ये सुनो, ठीक है, और प्राइवेट व्हीकल होंगे जो 20 साल पुराने होंगे, दे विल बी स्क्रैप्ड, ठीक है। दोस्तों उनको हर बार लेकिन से री रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, मतलब इतने साल के बाद आपको आपकी गाड़ी का नया रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। नए रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको फिटनेस टेस्ट करवाना पड़ेगा, ये सुनो, और नए री रजिस्ट्रेशन की जो फीस होगी, ठीक है, ओके, दैट इज व्हाट दे हैव इंक्रीज्ड, ठीक है, ताकि लोग नई गाड़ी खरीदे, पुरानी को बेच दे, ठीक है। अच्छा, साथ में they are also saying that we are going to offer road tax rebate up to 25% of personal vehicle and up to 15% of commercial vehicle to provide incentive। So when you go for a new car, अगर आप नई कार परचेस करते हो और आप ओल्ड कार को आप स्क्रैप में डालते हो, स्क्रैप का सर्टिफिकेट लेकर आओ और आप दुकान पे जाओ नई गाड़ी खरीदने का, तो आपको उसमें 25% रोड टैक्स में रिबेट मिलेगा। Yes or no? This is very important, ठीक है। चलिए ग्रेट दोस्तों, there are a lot of issues which are coming up in this, ठीक है। The potential benefit for scrapping is a 15-year-old entry level small car will be, you can say, कितना, बहुत ही कम, ठीक है, और उसकी रीसेल वैल्यू कितना है, 95,000, ठीक है। तो स्क्रैपिंग करने में बड़ा फायदा थोड़ी है, बराबर है। अगर आप उसको स्क्रैप करोगे तो 70,000 रुपया मिलेंगे, बेचोगे तो 95,000 मिलेगा, तो कौन ये नहीं करना चाहेगा,
ओके चलिए ग्रेट दोस्तों. तो सुबह वी couldn't manage because of technical glitches, but here it is done. The entire part is done for you. Okay, great दोस्तों. Thank you very much for watching this and all the best.